मुझे तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद तेरा दिया, जो कुछ है तेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद क्यों ना इस कोरस को हम कम संगीत और कम म्यूजिक के साथ में गाएंगे। धन्यवाद का कटोरा। यीशु मसीह के सामने वो जगत के पाप का प्याला था जो उसने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए पी लिया, ताकि मैं और आप आज धन्यवाद का कटोरा उठाकर, उस उद्धार के कटोरे को उठाकर प्रभु को धन्यवाद कह सके। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, गाएं पिता धन्यवाद, यीशु
beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. Holy God, to you all praise is due. I stand in awe of you. Lord, I stand in awe of you. The sun comes up, it's a new dawn. It's time to sing a song again. Whatever may pass
Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship Your holy name. Worship Your holy name. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the roaring thunder, Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great
with shouts of acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, how great thou art. How great thou art. Give the Lord a clap. Give glory, give honor, give praise to the Lord God Almighty. Hallelujah, Then sing choirs of angels, sing in exaltation, oh sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, all glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us
There's a sweet, so sweet presence in this place, and I know it is the presence of the Lord. With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. Oh, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. With a heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. Jesus. Bless your name. Kamaria Shalamatini Baba Sule Beberi Bazikara. Oriarin Namali Sikura Bayasi Kariatini Messi. Jesus. जा
Shall we turn our Bibles to Matthew's Gospel, the 5th chapter? आइए बाइबलों को खोलें, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। We all know this. This is the Sermon on the Mount. We call it the Beatitudes. और हम जानते हैं इसे यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश के रूप में कहा गया है, जिसमें धन्य की बातें लिखी हैं। Reading from verse 1. पहली आयत से पढ़ते हुए, And seeing the multitude, he went up into a mountain. When he was set, his disciples came unto him. वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। And he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। Blessed are the peacemakers, for they shall be called they shall see God. धन्य है वे जिनके Pure in मन heart, there's a pure in heart, for they shall see God. धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad. Great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before me. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। You see, Jesus went up the mountain, he called his disciples. देखिए, यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़कर बैठा और अपने चेलों को अपने पास बुलाया। And when he was set, his disciples came to him. और जब वो बैठ गया, तब लिखा है उसके चेले उसके पास आए। There are certain things that he shared with his disciples which were not shared with the outsiders. कुछ ऐसी बातें थी जो यीशु मसीह केवल अपने चेलों के संग बांटता था, उसे आम जनता के बीच नहीं बोलता था। And in the Beatitudes you'll find और धन्य के इस पाठ में आप पाते हैं that so many categories of people have been given here who are blessed. यहाँ पर कितने अलग अलग वर्ग के लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने धन्य कहा है। And और you'll find that he's always saying, blessed are they, blessed are they. और बार बार यीशु मसीह हर वचन में कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे। But when he is talking about persecution, लेकिन जब वो सताव आने के बारे में जब बोलते हैं in the 11th verse, 11वीं आयत में, he said, blessed are you. वो कहता है धन्य हो तुम, Meaning, अर्थात they were all set apart for persecution. वो सब के सब सताव के लिए तैयार थे। There has been a constant conflict between light and darkness. इतिहास में हमेशा से ही एक संघर्ष रहा है अंधकार और ज्योति के बीच में, God and Satan, परमेश्वर और शैतान के बीच में,
truth and lies, सच्चाई और झूठ के बीच में, between angels and demons, स्वर्गदूतों के और दुष्टात्माओं के बीच में, and between the righteous and the wicked. लड़ाई दुष्ट के और धर्मी के बीच में। The enemy also, the devil also uses his weapons. शत्रु शैतान भी अपने हथियारों को इस्तेमाल करता है, His weapons are always evil. और शैतान के हथियार हमेशा ही दुष्टता के हैं, Deception, धोखाधड़ी का है, lies, झूठ से भरा है, hatred, नफरत है and murder और हत्यारा है and destruction. और विनाशकारी है। You see, all this, if you see happening, देखिए, यदि ये तमाम चीजों को आज यदि आप अपने चारों तरफ होते देखते हैं, remember this is the agenda of the devil. तो बिल्कुल साफ जान लीजिए कि शत्रु का पूरा कार्यक्रम और रणनीति यही है। He might use people, हो सकता है वो लोगों को, इंसानों को इस्तेमाल करे, but behind all this evil is his hand. परंतु इन सब बुराई के पीछे जो प्राणी है वो शैतान है। And on the contrary, और इसके विपरीत God's weapons are different. परमेश्वर के हथियार बिल्कुल अलग किस्म के हैं। Amen. आमेन। His methods are totally opposite to what devil uses. परमेश्वर जिन विधियों का इस्तेमाल करता है, शैतान जो करता है उससे बिल्कुल भिन्न है। God's greatest weapon is love. परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार है प्रेम। Amen. आमेन। God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। His being is love. His nature is love. उसका स्वभाव, उसके गुण प्रेम है, And out of his love, और उसके प्रेम से होकर he works. वो कार्य करता है। Because he is loving, he is merciful. और चूंकि वो प्रेम करने वाला प्रभु है, वो दयावंत भी है। Wicked are not punished immediately, not because they are strong, लोग इसीलिए तुरंत सजा नहीं पाते, इसलिए नहीं कि लोग ताकतवर हैं, or maybe they have a lot of influence and power. और इसलिए नहीं बचे रहते क्योंकि उनका बहुत प्रभाव है या उनके पास बड़ा अधिकार है। It's not because they've got good health and they've got look very big. इसलिए वो लंबे समय तक बचे नहीं रहते क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या वो बहुत ऊंचे पुरे हैं। It is because God is long suffering. वो इसीलिए बचे रहते हैं दुष्ट क्योंकि परमेश्वर लंबे समय तक धीरज धरता है। Amen. He is not willing that any should perish, क्योंकि परमेश्वर की चाहत नहीं है कि कोई भी जन नाश हो, but that all men should come to repentance. परंतु वो ये चाहता है कि दुनिया का, जगत का हर एक मनुष्य उद्धार के अनुभव में आए। Amen. आमीन। So never take God's love for weakness. इसलिए परमेश्वर के उस दिखाए हुए प्रेम को कभी भी कमजोरी होने का गलती ना करें। Also never take God for granted that his judgments don't come quickly. और इसलिए नहीं, परमेश्वर तुरंत जिसका न्याय नहीं, परमेश्वर न्याय नहीं करता, तो ये ना करे सोचे कि परमेश्वर न्यायी नहीं है। He waits his time. वो अपने समय का इंतजार करता है। And when we see all evil happening, और जब हम दुनिया में चारों तरफ बुराइयों को होते देखते हैं, God is wanting us to be patient. परमेश्वर हमसे अपेक्षा ये कर रहा है कि हम धीरज रखें। The trial of your faith तेरे विश्वास का परखा जाना is more precious than gold which perishes. वो उस नाशमान सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य है। Amen. आमीन। God's method, God's weapon is forgiveness. परमेश्वर के हथियार जो हैं उनमें है क्षमा करना। Paul writing in his epistle says, पौलुस अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है, the goodness of God परमेश्वर की भलाई leadeth you to repentance. तुम्हें पश्चाताप की ओर ले आती है। Amen. आमीन। It's not his harshness, परमेश्वर की कड़ाई नहीं, his goodness. परमेश्वर की भलाई तुझे नम्रता की ओर ले आती है। He sends rain on the wicked and on the righteous. वो जब बारिश भेजता है तो धर्मी और दुष्ट दोनों को बराबर की आशीष देता है। Amen. So good God is. वो प्रभु कितना भला है। Amen. आमीन। No wonder we sing that song, God is so good. इसलिए तो हम उस गीत को गाते हैं, यीशु अच्छा है, He is good to me. मेरे लिए
कितना अच्छा है। Amen. Amen. If it was not for His mercy and goodness, we would have perished long यदि time back. उसकी भलाई नहीं होती, अच्छाई नहीं होती, हम कब से मिट गए होते। But what is it that grieves the devil? परंतु कौन सी वो चीज है जो शैतान को पीड़ित और दुखित करती है? He expects us to react to his attacks according to his ways. क्योंकि जब शैतान ये अपेक्षा करता है हमसे और आपसे कि जैसा उसने काम किया वैसे ही हम भी प्रतिक्रिया करें, And when we don't do that, और जब हम वैसे ही प्रतिक्रिया जो शैतान चाहता है नहीं करते, he still work on us so that we might react in the flesh. वो हमारे ऊपर फिर काम करता है कि किसी न किसी कारण से हम भी क्रोधित हो जाएं या कुछ प्रतिक्रिया करें। In 2 Corinthians 10 chapter 4th verse it says, दूसरा कुरिन्थियों 10 और उसके 4 में लिखा हुआ है we must remember the weapons of our warfare are not carnal. कि हमारे लड़ाई के हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, They are mighty through God to the pulling down of the strongholds. परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। Amen. आमेन। So what are our weapons anyway? हमारे लड़ाई के हथियार वैसे है कौन से? We have the name of Jesus Christ. एक हथियार है हमारे पास यीशु का नाम है, We have the blood of Jesus Christ. हमारे पास यीशु का लहू नामक हथियार है, We have the word of God. हमारे पास परमेश्वर का वचन हथियार है, And all these three और ये तीनों मिलकर combined with prayer, प्रार्थना के साथ जब मेल के साथ होता है they become deadly. वो फिर शैतान के लिए घातक है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलूया। God's weapons are not weak. परमेश्वर के हथियार एक भी हथियार कमजोर हथियार नहीं They है, are mighty. परंतु परमेश्वर के हथियार जबरदस्त सामर्थी है Hallelujah. They're deadly. और खतरनाक है। Amen. To the pulling down of the strongholds. इतना खतरनाक कि बड़े बड़े गढ़ को भी नेस्तनाबूद कर दे। We can cast out demons in the name of Jesus. दुष्टात्माओं को केवल यीशु के बोले गए वचनों के द्वारा निकाल दें। Amen. In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में वो निकल जाएं। But to pull down the strongholds, परंतु गढ़ों को ढाने के लिए we need the word of God. हमें परमेश्वर का वचन चाहिए। Amen. आमेन। Because the stronghold is somewhere inside us. क्योंकि दृढ़ गढ़ कभी कभी अंदर होते हैं, We need the word. हमें उसके लिए वचन चाहिए And the word will do its job. और वचन अपने काम को करेगा। So coming back to this portion of scripture we read. पवित्र शास्त्र के इस भाग में वापस यदि हम आए, It says here, यहाँ वो कहता है 10th verse, 10 आयत, Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। Not persecuted for doing wrong, गलत काम करने के लिए जो लोग सताए जाते हैं ऐसा नहीं, but when we're doing good and still we're being persecuted, परंतु धार्मिकता के काम करने के कारण सताए जाते हैं। today people have nothing to say. Even if you give a piece of cake, they say this is conversion. और लोग आज ऐसी स्थिति में हैं, यदि उनको आप खुशी से केक भी खाने के लिए दें तो वो केक कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन का मुद्दा बनाते हैं। If you wear a certain kind of dress, that is also conversion. और यदि किसी प्रकार का कपड़ा पहने तो इस कपड़े से धर्म परिवर्तन होता है। You see, they must know one thing. उनको एक बात मालूम होनी चाहिए, What you confess will happen. आप जो जो चीज बोलेंगे, कपड़ा, केक, वो सब वैसे ही हो जाए। Amen. आमीन। You are declaring there is so much power in that. और क्योंकि आप ही जो विरोधी हैं वही इस बात को कह रहे कि इनके कपड़े में, इनके भोजन में ऐसी ताकत है। Even looking at you, आपकी तरफ वो देख रहे हैं you get saved. और उनको लगता है देख रहे हैं मतलब धर्म परिवर्तन हो जाएगा। Amen. Not all are like that. लेकिन सब वैसे नहीं है, Majority are not like that. और बहुमत लोग ऐसी सोच नहीं रखते हैं। We have got good friends हमारे पास अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त हैं who have been wishing us greetings जो कि for Christmas. क्रिसमस के दौरान अपनी अभिवादन को और शुभकामनाओं को भेज रहे थे। The one who got us this plot of land, जिस व्यक्ति ने ये जमीन को जिसने दिया था, who got us through. जिसके द्वारा ये मिला था, Every year, हर साल
He will wish us वो greetings for Christmas and New Year. क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं बिना भूले भेजता है। He is not a Christian, वो मसीही व्यक्ति नहीं है, but we are good friends. परंतु हम अच्छे मित्र हैं। There are like many more like this. ऐसे ही आपके भी बहुत से ऐसे दोस्त होंगे They are wishing us. जो हमको क्रिसमस के दौरान अभिवादन और शुभकामनाएं भेजते Just because one fellow is a drug addict in the team, it doesn't mean everybody is drug addict. हैं। एक व्यक्ति यदि नशा करता है टीम में तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो पूरी टीम नशा करती है। No, friends. नहीं दोस्तों, But what I want to say is, मैं इस बात को क्यों कहना चाह रहा हूं there is a blessing in persecution. कि सताए जाने में भी परमेश्वर कहता है कि वे धन्य हैं। I had never thought that. मैंने इस चीज को कभी सोचा नहीं था, But here it is saying, परंतु यहां ये लिखा है, blessed are you if you are persecuted for righteousness' sake. धार्मिकता के कारण यदि सताए जाते हैं तो धन्य है वे। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। So don't avoid persecution. सताओ से डर के भागते नहीं। Christian is bold as a lion. मसीही सिंह के समान खड़ा रहता है। Amen. आमेन। He's not bothered. उसे फिक्र नहीं है। You see, both ways we are in profit. दोनों तरफ से हम फायदे में रहते हैं। If we live, यदि जीते हैं, God's blessing is on us. प्रभु की आशीष हमारे ऊपर है। If we die, यदि मरते हैं, we are into glory. प्रभु की बड़ी महिमा में हम प्रवेश करते हैं। Amen. हालेलुया। So there is no loss. और कोई हानि का बात ही नहीं। So when there is no danger for us, जब हमारे लिए कोई खतरा ही नहीं है। that's a good word. Hallelujah. आमीन। Then why should we worry? फिर क्यों हम फिक्र करें? Blessed are you धन्य हो तुम when you are persecuted for righteousness. जब तुम धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। Amen. आमीन। There is a blessing attached to persecution. सताव के साथ में एक आशीष जुड़ी हुई है। Have you noticed that? क्या आपने कभी इस बात को ध्यान दिया? I noticed recently. मैंने हाल ही में इस बात को गौर किया There is a blessing with persecution. कि सताव पाने वालों के लिए भी प्रभु कहता है ये धन्य है। Hallelujah. Amen. आमीन। So Jesus said, in this world you will have tribulation. और यीशु मसीह ने कहा था कि इस जगत में तुम्हें सताव होंगे। Be of good cheer, I have overcome the world. ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। Now 11th verse says, 11वीं आयत कहती है, blessed are you. धन्य हो तुम। There is a blessing when people are against you. जब लोग तुम्हारे विरोध में जब हो जाएं तो वहां पर भी एक आशीष है। Blessing and persecuting, being persecuted wrongly. गलत तरीके से सताए जाने पे आशीष है। Your promotion is somebody else get promoted. आपको अपने कार्यालय में तरक्की मिलना था लेकिन तरक्की किसी और को मिल गया। You are daily facing challenges. आप रोज अपने काम में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। Remember, याद रखना, every challenge will bring a blessing. हर चुनौती तेरे लिए तुझे धन्य बनाएगी। Hallelujah. Amen. You will become blessed. तू धन्य हो जाए। They might try to put you down, but the spring is too big, चाहे too लोग strong. कितना भी तुझे नीचे दबाने का प्रयास करें, Amen. परंतु वो जो स्प्रिंग है तुझे ऊपर उछाल देती है। In early days, we used to get the toys like jumping jack. और पुराने समय में खिलौना आता था, जंपिंग जैक बोलते थे। So nowadays, everything is electronic. आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। But you open the box, जैसे उस बक्से को कोई अनजाने में खोलता था, swinging that one fellow will come up. उसके अंदर एक पुतला स्प्रिंग से बंधा है, एकदम आपके चेहरे पे आ जाता। That's what a Christian is. मसीही को जो दबाएगा उसके साथ वैसा ही होगा। Don't press them. उसे ना दबाओ, बहुत ऊंचे चले जाएंगे. बहुत ऊपर उछलता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Blessed are those who are persecuted for righteousness. Theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Now, second category. और दूसरा वर्ग है, Blessed are they who, when you are blessed because people speak evil of you. जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, धन्य हो तुम। Now, अब he's saying, blessed are ye. वो कह रहा धन्य हो तुम। Earlier, इसके पहले he's saying, blessed are they. उसने कहा धन्य है वे।
Amen. आमेन। Now he's turning personally to his disciples. अब यीशु मसीह अपने पास बैठे उन चेलों की तरफ देखकर कह रहा है, धन्य हो तुम। Indirectly he is saying, अप्रत्यक्ष तौर से वो कह रहे, this is what is happening to me will come upon you कि जो also. आज मेरे साथ ये हो रहा है विरोध, वो तुम्हारे साथ भी होगा। See how I stay cool in every situation. और देखो मैं कितना इन तमाम परिस्थितियों में शांत रहता हूं। Amen. Amen. Standing before Pilate, he is cool. पिलातुस जैसे बड़े हाकिम के सामने भी यीशु मसीह शांत खड़ा, Not perturbed at all. बिल्कुल भी विचलित नहीं दिखता। Peace of God. परमेश्वर की बड़ी शांति। You will keep him in perfect peace whose mind is on you. तू उस व्यक्ति को पूर्ण शांति में Hallelujah. रखता है जिसका मन तुझ पर आधारित है। Amen. आमेन। Think on these things. इन बातों पर मनन किया करो। Blessed are you when people will revile you. धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करें। Amen. आमेन। What to do? क्या करें? He says, यीशु मसीह कह रहे, and persecute you. और सताएं। Again he's saying you. फिर कह रहा, तुम्हें सताएं, And shall say all manner of evil against you falsely. और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Amen. आमेन। So there is nothing changed in human beings. मानव प्राणी में कुछ भी बदला नहीं है, They're just the same. वो वैसा ही है। Reviling people. लोगों को विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहते And tell lies about their life. और झूठ बोल बोल कर Amen. तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात यदि कहें। Amen. आमेन। Don't allow people to throw trash in your house. लोगों को अनुमति ना दें कि वे अपने कूड़े को आपके जिंदगी पे फेंकें। Amen. आमेन। They just come to spoil the atmosphere of your house. वो आपके घर के वातावरण को खराब करने के लिए आए हैं। Think on these things. इन चीजों पर मनन करो। If you are risen with Christ, यदि मसीह के साथ जीवित हुए हो think on heavenly things. तो स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाया करो। Amen. आमेन। If you want to invite the devil, शैतान को यदि निमंत्रण देना है he only wants a window. तो शैतान को तो दरवाजे की जरूरत नहीं, खिड़की से ही हो जाता है। Even if the ventilator is open, वो वेंटिलेटर भी खुला मिल जाए तो उससे आ जाए, he will creep in. वो बुलक जाता वहां से। You know, आप जानते हैं this is the job of the devil. ये शैतान का काम है Revile, tell all manner of lies against you falsely. कि तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। Some people know everything about everyone. कुछ लोगों को सब लोगों के बारे में सब कुछ पता है। Appointed by, cannot say God. प्रभु के द्वारा नियुक्त है वो व्यक्ति, ऐसा हम नहीं बोल सकते। They will come and tell such lies that you will believe them. वो सब लोगों के बारे में ऐसी झूठ बातें कहेंगे कि आपको भी सहसा विश्वास हो जाएगा। I know it. मैं जानता हूं, I have proof. मेरे पास प्रमाण है, I can produce. मैं प्रमाण दिखा सकता हूं। Remember, friend, याद रखें दोस्तों, judgment of God is waiting. परमेश्वर का न्याय इंतजार करता है। Don't backbite. पीठ पीछे बुराई ना करें। Amen. आमेन। Don't say all manner of evil about the church. कलीसिया के बारे में, प्रभु विश्वासियों के बारे में बुरी बात ना कहें। You are opening a door for the devil to attack you. और लोग अपने आप को ऐसा करके शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं आक्रमण का। But for those who are going through this situation, परंतु जो लोग इन्हीं बातों के कारण सताए जा रहे हैं और तकलीफ में हैं, don't fight back. प्रभु हमको सिखाता है कि पलटकर लड़ना नहीं है। Amen. आमेन। What do you have to do? आपको क्या करना है? Rejoice. प्रभु कहता है तब आनंदित होना और Hallelujah. मगन होना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। For same thing they did to the prophets. भविष्यद्वक्ताओं के साथ उन दिनों में यहूदियों ने वही किया था। But he says in 12th verse, 12वीं आयत में यीशु मसीह कह रहे हैं, and in 11th verse, he says, they say all manner of things against you falsely. वो झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। Then he says 12th verse, 12 में कहता, rejoice and be exceeding glad. तब आनंद और बहुत मगन होना। अरे वाह, आज क्यों खुश है भाई? आज क्यों इतने मगन हो?
मेरे बारे में बहुत बुरा बोल रहा था, इसलिए मगन हूं क्योंकि बहुत बुरा, मेरे विरोध में निंदा किए हैं, गाली भी दिया है। गाली भी दिया। तो खुश हो रहे हो? तो बाइबल तुम खुश हो रहे? बाइबल से बाइबल कहती मैं धन्य हूं, भी, मैं धन्य हूं। that's the worst way to tantalize that person. और शैतान को चिढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। Amen. आमेन। The joy of the Lord. प्रभु का आनंद। Amen. आमेन। Don't just rejoice, केवल आनंदित मत हो, be exceedingly glad. मगन हो जा। Amen. आमेन। Great is your reward. क्योंकि यीशु ने कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। Hallelujah. So we are finding that there is blessing in persecution. हम ये पा रहे कि सताव में भी वहां पर बरकत है। Amen. आमेन। So they throw stones at you, burn your star. Don't worry. लोग पत्थर आपके ऊपर फेंके, आपके घर में हो जो स्टार चमक रहा है उसको जला दें, चिंता ना करें। Bless them that curse you. जो तुम्हें श्राप देते हैं, यीशु ने कहा उनको भी आशीष दो। जला के जा रहा है, बोले भैया 1 मिनट रुको जरा। जला के जा रहे, 1 मिनट भैया थोड़ा रुक जाओ। क्या बात है? क्यों रुक जाओ? आशीष तो देने दो। आशीष तो दे दूं आपको। Hallelujah. Amen. Be blessed. धन्य हो तुम। That fellow cannot sleep. वो आदमी को शायद उस रात तो नींद Your आएगी, blessing will follow him. आपकी आशीष उसका पीछा करेगी। Hallelujah. Amen. There is power वहाँ सामर्थ है in blessing. आशीष में। Blessed are those who are persecuted. धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते। Blessed are you when men go against you in many ways. धन्य हो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, Rejoice. विरोध करे, आनंदित होना Exceeding glad. और मगन होना। Amen. मैन। Magan means you begin to sing something. मगन मतलब आप कुछ गाना गाने गुनगुनाने लग गए। Amen. मैन। मेरे दिल में एक गीत है। मेरे दिल में एक गीत है। Amen. प्रभु यीशु देता है। प्रभु यीशु आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। करूंगा। हालेलुया। Glory, glory, hallelujah. Amen. Are Amen. people speaking against you? क्या लोग आपके विरुद्ध में तरह तरह की बातें करते हैं? Don't react. प्रतिक्रिया ना करें। Vengeance belongs to God. परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है बदला लेना मेरा काम है। Amen. मैन। What you have to do, आपको फिर क्या करना है? be happy. आनंदित होना है। Amen. आमेन। Exceeding glad. और अत्यंत मगन होना है, Great is our reward in heaven. क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा फल है। Amen. आमेन। There is joy in persecution. सताव जब आते हैं वहां पर आनंदित होने का कारण है। Exceeding glad for. He's not saying for the sake of saying. और वो यूं ही बोलने के लिए ही प्रभु यीशु नहीं बोल रहे हैं। He's saying you try and it will happen. वो कह रहा तुम प्रयास करना आनंदित होकर और तुम आनंदित होगे। Don't take vengeance. बदला नहीं लेना, उसे छोड़ देना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। That's a dangerous thing. ये एक खतरनाक चीज है। It is better to have man to man than to have man and God. बेहतर है मनुष्य मनुष्य के बीच में, इसके बजाय कि कोई मनुष्य परमेश्वर से लड़े। Amen. आमेन। Acts of the Gospel, 5th chapter. प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, 5th chapter. 5वां अध्याय, Verses 40, 41 and 42. 40, 41 और 42 आयतें। Gamaliel had given them advice. गमलीएल ने उनको सलाह दिया था एक समय, Leave alone these fellows. इन मसीही कहलाए जाने वाले लोगों को छोड़ दो, उनके पीछे मत पड़ो। At least take Gamaliel's advice. कम से कम उस विद्वान गमलीएल का सलाह तो लोगों को मान लेना चाहिए। Or people who are doing nonsense, let them take Gamaliel's advice, not Bible advice then. जो लोग विरोध और तमाम चीजें कर रहे हैं वो हमारा सलाह तो नहीं, कम से कम गमलीएल का ही सलाह मान लें। And what he said, और उसने क्या कहा? verse 39, 39 में, if it be of God, you cannot overthrow it. ये जो काम है यदि परमेश्वर की ओर से है
तो तुम उन्हें कदाप। I think we read from verse 38. 38 से पढ़ ले। Now I say unto you, refrain from these men, and let them alone, for if this counsel or this work be of men, it will come to naught. इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। Amen. मैन, Good advice. बहुत अच्छा समझदार का सलाह था। सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं? सब सुन रहे हैं? आमीन, जो जो सो रहे हैं हाथ उठा लें प्लीज। आमीन। धन्यवाद। नहीं, वो जब लोग सुन रहे में हाथ उठाए थे, वो जब तक वो नीचे आ गए थे। ऑलराइट, कम ऑन। 38 आयत। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। हाँ। और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। आमेन। आमीन। All these prayer meeting and all these things will come to an end. तमाम ये प्रार्थना सभाएं और तमाम कार्यक्रम एक दिन अंत हो जाएंगे। Churches will close down. कलीसियाएं भी बंद हो जाएंगी यदि मनुष्यों की ओर से। There will be no believers. और वहां कोई विश्वासी भी नहीं रहेगा यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। But if it is of God, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, you cannot overthrow it. तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। Amen. Let's read that. 39 में से पढ़ें। Lest happily you found even to fight against God. कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। Amen. आमीन। See the confidence of some people to climb up somebody's pulpit and also talk. कुछ लोगों का हिम्मत देखिए, किसी दूसरे के मंच में चढ़ के बात करते हैं। And talking nonsense, not even sense. और कुछ बुद्धि की बात एक मिल जाए तो नहीं, मूर्खता की बात। Proving to everybody who's seeing how big a fool that person can और be. पूरी जगत के सामने अपने आप को ये प्रमाणित कर दिया अंततः कि हम कितने महामूर्ख हैं। Amen. Amen. Now, और अब see, what do they do? क्या कहता है? And to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them up, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया। अच्छा, अरे क्यों पिटाए भाई? क्योंकि यहां ले आए तो पीट दिया हमने। अब यहां ले आए थे इसलिए हमने उन चेलों को, प्रेरितों को पिटवा दिए। Now when they had come to a solution, why did they beat them? अब जब वो एक निष्कर्ष में पहुंच गए थे कि इन मनुष्यों से कोई काम नहीं रखना है, फिर क्यों उनको पिटवाया? Beat them and said to them, पिटवाया और उनसे उनको ये आदेश देकर don't speak in the name of Jesus. आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात नहीं करना। अच्छा, आदेश है। Everybody is giving आदेश nowadays. आजकल जो भी आदमी आदेश देता है। Wait. रुको, थोड़ा रुक जाओ। you'll see. Now see what happened. अब क्या हुआ देखिए। 41st verse. 41 आए। And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer for the shame for his name. वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Persecution, there is joy. सताए गए तो वे चेले आनंदित हुए। देख लूंगा अभी जाके ना सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, देखना फिर। ऐसा नहीं बोले कि अब मैं उच्चतम न्यायालय जाऊंगा। क्या सोचते हो आज मार लिया, कल मैं मारूंगा? Not anything like that. ऐसा कोई भी बात प्रेरितों ने मेरा नहीं भी दिन आएगा कि मेरा भी दिन आएगा। ऐसा The most tantalizing thing for the devil was, शैतान के लिए को बहुत विचलित करने वाली जो बात थी, and for them also, और जो उनको पीटे थे उनको भी परेशान करने वाली चीज, when they are going out,
जब ये प्रेरित लोग वहां से महासभा से जा रहे थे, other disciples had also come, maybe. दूसरे चेले लोग भी शायद मिलने वहां बाहर खड़े रहे होंगे। And they're saying, oh, praise the Lord, brother, praise the Lord. वो hallelujah." प्रभु की प्रेज द लॉर्ड बोल के मिल रहे एक दूसरे से। अपन ने मार दिया, यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, इधर उधर। ब्रदर तकलीफ सहना पड़ता प्रभु की से। Rejoice. चेले आनंदित हुए। Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। They were glad. लिखा है वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। Praise the Lord. हालेलुया। Amen. Amen. Turn with me 1 Peter 4th chapter. पहला पत्रस 4 अध्याय खोलें। एक पीटर तो यही है, पहले ही पीटर 4th chapter. चौथा अध्याय। Verses 12 उसकी 12 आयत onwards. आगे। Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which are to try you, as though some strange thing has happened to you. हे प्रियों, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। 13th verse. 13 आयत। But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when the glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. पर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। Amen. आमेन। He's saying, वो कह रहा है, think it not strange if these things happen. जब दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़के तो अचंभा मत करना। 13th verse. 13 आयत में, But do what? परंतु उसके बदले क्या करना? आनंद करो। Row. What does it say? क्या कहता है? 13 आयत में, Rejoice, आनंद करो, inasmuch you are partaker of Christ's suffering. जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। Strange things happening. जब अजीबो गरीब नई नई किस्म की चीजें तुम्हारे साथ होने लगे, Which you never expected to happen. ऐसी बातें जिसकी आपने इसके पहले कभी अपेक्षा भी नहीं करी थी, And those things are troubling you. It's a trial. और वो तुम्हारे परखने के लिए अग्नि के समान दुख आया है, It's like fire. आग के समान भड़का है। Rejoice. तब अचंभा मत करना, आनंदित होना। Why? क्यों? Listen. सुनो, You are partakers of Christ's suffering. क्योंकि तुम मसीह के दुखों में सहभागी हो। When His glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। Suffering also आनंद and ending is also आनंद. दुख के समय भी आनंद और आखिर में भी तुम्हें आनंद और मगन होगा। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। 1 Thessalonians, पहला थिस्सलुनीकियों 3rd chapter. और उसका 3रा अध्याय। Third chapter, 3रा अध्याय 3 and 4. उसका 3 और 4। That no man should be moved with such of affliction, for you yourself know that we are appointed thereunto. कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। For verily when we were with you, we told you before that you should suffer tribulation, even as it came to pass, and you know.
क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ जैसा कि तुम जानते भी हो। Amen. आमीन। You see, we should, in the gospel, when we preach, it is there that it says, follow me, take up your cross and follow me. सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु ने कहा कि मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। Meaning, it's not something very comfortable. कोई ऐसी चीज नहीं है क्रूस जो कि आरामदायक है। Some people say, when I become, I believe on the Lord, what will I get? कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु यदि मैं विश्वासी बन जाऊं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? Salvation. उद्धार मिलेगा। Amen. आमीन। Forgiveness of sins. पाप की क्षमा मिलेगी। हम सोचे थे हमको अमेरिका जाने मिलेगा, हम तो सोचे थे मसीह लोग को अमेरिका जाने मिलता है। तो जिंदगी कट गई, अभी तक नहीं गए हम। Amen. आमीन। Go there, no problem. वहां जाएं, कोई समस्या नहीं। God will test you first. पहले परमेश्वर Amen. परखेगा। Amen. आमीन। Nowadays some prosperity preachers will just say, भला हो रहा था, tomorrow you're going to BMW चले जाओ। और कुछ आजकल संपन्नता प्रचार करने वाले कहते कि ऐसा करो, प्रभु तुम्हें बड़ी Little गाड़ी। suffering comes and then problem starts. लेकिन थोड़ा सा सताव आता है और लोग दुखित हो जाते हैं। Amen. Amen. Where is it? I missed out something over here. You see, where is it? Yeah, Matthew's Gospel 13 chapter 20 and 21 says, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 20-21 कहता है, but he that receiveth seed into stony places, the same as he that heareth the word and with joy receives it. पर जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। 21st verse. 21 आयत, Yet hath no root in himself, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, but endureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth for the word, by and by he is offended. वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। And the most dangerous person is the person who is offended. और जो खतरे में वो व्यक्ति वो है जिसे ठोकर लगी है, Because his song is only offense. क्योंकि उसका बात ही ठोकर का है। Always saying, हमेशा वो गाते, वो कौन है, वो कौन है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, हम तो रहे वहाँ. हम तो वहां What रहे। you talking? आप क्या बोल रहे हैं? This person one time received the word and was joyous. ये व्यक्ति वो है जो एक समय वचन को पाते ही साथ वो आनंद के साथ उसे मान लिया था, And he grew for some time. और कुछ समय तक वो बढ़ा भी। But when persecution came, पर जब उपद्रव या क्लेश हुआ there is no root. तो वहां पर जड़ नहीं रखने के कारण, If you and I don't read the word of God and pray yourself, यदि मैं और आप परमेश्वर का वचन ना पढ़ें और प्रार्थना ना करें, you know you don't have to read personally. तो आप व्यक्तिगत तौर से आप पढ़ाई करिए, व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना करिए, You shall be like a tree planted by the river. ताकि आप नालियों के किनारे लगाए गए, जलते पानी के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान हो You जाएं। meditate on the God's word day and night. प्रभु के वचन पर रात और दिन ध्यान करें, And so your roots go inside. ताकि आपके जड़ अंदर और गहराई में Tree पकड़ becomes ले, strong. और वो मजबूत हो जाए, Nothing can shake you. तब कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकेगी। Amen. आमीन। Don't depend on others. किसी और पे निर्भर ना करें, Depend on the Holy Ghost. पवित्र आत्मा पे निर्भर करें। Amen. आमीन। Depend on your own personal reading of the अपने scripture. खुद व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन पर भरोसा करें। Only not depending upon other YouTube channels दूसरे only. YouTube चैनल की शिक्षाओं पर निर्भर मत करिए। You must hear God firsthand. आप पहले सीधा सीधा परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो जाएं। Hallelujah. Amen. You must know God's word. आपको प्रभु का वचन मालूम होना Then चाहिए, nothing can shake you. तब कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकेगी। Got offended? क्या आपको ठोकर लगी? Because क्यों? word, इसलिए word of God is not there. क्योंकि परमेश्वर का वचन जड़ नहीं रखा। Amen. आमीन। Sometimes you see कभी आप देखते हैं some
shifting of trees from here and there. कुछ पेड़ को लोग एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे जगह उसे जमाते हैं. You can do it once. एक बार आप उसे कर सकते You हैं, can't do it all the time. लेकिन बार बार उस पेड़ को हिलाया नहीं जा सकता. Sometimes the tree looks green all the time, और कभी कभी पेड़ पूरे समय हरा भरा दिखता in है. spite of going all round. तमाम Remember, tree is not an animal. देखिए, वृक्ष जो है वो जानवर नहीं है. My animal can move around here and there. जानवर यहाँ वहाँ घूम फिर सकता है. A Christian is known as a tree, और वृक्ष Amen. मसीह को एक वृक्ष के समान होने कहा गया. planted in one place, एक स्थान में, एक वचन में वो जड़ रखे become a blessing to others. और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए. Amen. आमेन. You can have a roaming lion, but not a roaming tree. आप एक घूमते फिरते शेर की बात कर सकते, घूमते फिरते पेड़ की बात नहीं कर सकते. If it is going here and there, यदि वो यहाँ वहाँ घूमता है it is artificial. तो फिर वो स्वाभाविक वृक्ष नहीं, नकली है. In mall, we'll find that green one, मॉल में आप देखते हैं हरे भरे पेड़ और लताएं लगी हैं. like this one. जैसे ये भी हरा दिख रहा है. You put water, don't put water, green. को पानी दो या मत दो, वो ऐसे ही हरा रहेगा. Don't be like that. हमें लेकिन ऐसा नहीं बनना है. Let us be living. विश्वास करना है. Hallelujah. आमीन. Let your roots go down. ताकि तेरे जड़ अंदर गहराई में चले जाए. Persecution will come. और क्लेश तो आते हैं, आएंगे. If everything is gone, what will you do? सब कुछ जब हमारा खो जाए हम क्या करेंगे? Will you still say, क्या फिर भी तू कहेगा the Lord gave, the Lord has taken it away? प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, उसका नाम धन्य है. Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम धन्य है. Amen. Hallelujah. Because your roots are gone down. वो आप तब कहेंगे क्योंकि आपका जड़ बहुत अंदर तक जमा है. Strange thing has happened. बहुत अजनबी पराई चीजें जब आपके साथ हों. Philippians 1st chapter, फिलिपियों पहला अध्याय verse 29. उसका 29 आयत. For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his name. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ. Amen. For unto you, तुम्हारे लिए. अच्छा, one verse earlier it says, ऊपर की एक आयत कहती है, and in nothing terrified by your adversary, which is to them an evident token of perdition, but to you salvation that is of God. और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है. What is the sign क्या है उसका चिन्ह? of the destruction? उन विरोधियों के विनाश का, That they are coming against you. कि वो तुम्हारे विरुद्ध में आकर विरोध कर रहे हैं. ये उनके विनाश का चिन्ह है. There is a sign that there will be, the time is over. ये विनाश का चिन्ह है कि उनका समय अब अधिक नहीं बचा. And for you, और तुम्हारे लिए, it is given on behalf of Christ. परंतु तुम्हारे लिए उद्धार परमेश्वर की ओर से उद्धार का, Not only to believe on him, कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो but also to suffer for his name's sake. पर उसके लिए दुख भी उठाओ, ऐसा तुम पर अनुग्रह हुआ है. अच्छा, be ready तैयार रहें to even suffer for Jesus. यीशु मसीह के लिए भी दुख उठाने के लिए. You and I need to have patience. मुझको और आपको धीरज धरने की आवश्यकता है. Closing, बंद कर Hebrews 10th chapter, इब्रानियों उसका 12 अध्याय, 10th chapter, 10th. माफ करें 10 अध्याय, Reading verses from 32. 32 से आगे यदि हम पढ़ें. ध्यान से पढ़ेंगे इसको. But call to remembrance the former days in which after you were illuminated, you have endured a great fight of affliction. परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो
जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। Amen. After you become a believer, storm starts. विश्वासी बनते ही साथ आंधी तूफान शुरू हो जाता है। Devil is now turned his guns upon us. और शैतान आपके विरोधी बन जाता है। So what does it say? क्या कहता है? But call to remembrance. Think of those days, former days, उन पिछले दिनों को स्मरण करो in which you were illuminated. You endured a great fight of affliction. जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। Partly you were made a gazing stock, both by reproaches and by affliction, and partly lest ye be companions of them that were so. कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। For he had compassion of me in my hand, in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in that yourself ye have in heaven a better and an enduring substance. क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। Amen. You want to burn our goods? Burn it. क्या हमारी संपत्ति को जलाना चाहते हैं? जला लो, Joyfully. हम आनंदित होंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We need to have patience. हमें धीरज, ऐसे समय में धीरज धरने की जरूरत है। Verse 36. 36 आयत। For you have need of patience after that you have done the will of God, you might receive the promise. क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। Amen. आमीन। There is a reward. वहां एक बड़ा प्रतिफल है। You know what happened in Manipur? आपको मालूम है मणिपुर में क्या हुआ? All the property is gone. तमाम मसीहियों की संपत्ति वहां पर जल गई। What does God has to say? परमेश्वर इन पर क्या कहता है? You have an everlasting reward in heaven. सुन, स्वर्ग में तेरे लिए अनंत काल का बड़ा प्रतिफल है। इसी कारण You need to wait patiently. तुझे रुकना है, ठहरना है धीरज के साथ। 2 Timothy 2nd chapter 12 and 13 says, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय 12 और 13 कहता है, if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us. 2 Timothy 2nd chapter दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और 12 and 13. 12 और 13 कहता है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Amen. Lord, a word of God for us today. परमेश्वर का इतना वचन है हमारे लिए। The suffering should not make us sad. कि कोई भी सताव तुझे रोने के लिए नहीं है, Suffering should make us glad. परंतु सताव में आनंदित और मगन होना। Spoil our goods. जब लोग संपत्ति को जला देते हैं, Be glad. आनंदित और मगन होना, Great is your reward in heaven. क्योंकि तू धन्य है और तेरा प्रतिफल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And remember one thing. एक बात को ना भूले, You shall reign with him. और तुम उस प्रभु के संग संग राज्य भी करोगे। Now you are standing in line to meet some official. आज लोग कतार में खड़े रहते हैं लाइन में किसी बड़े आदमी से मुलाकात करने के समय लेकर, That day, लेकिन उस दिन they will stand in line. वे लोग
वो बड़े बड़े लोग कतार में खड़े रहेंगे before you. आपके सामने। Hallelujah. Remember, याद रखना, we need to have patience. हमें धैर्य रखने की जरूरत है। God is working. परमेश्वर अपना कार्य करना बंद नहीं। Persecution is not forever. सताव हमेशा के लिए नहीं है। Amen. Amen. What is seen is temporary. जो चीजें आंख से दिखाई देती है वो सब क्षणिक है। You read history. इतिहास को भी आप पढ़ लें। Even our late Prime Minister said one time, और भारत के ही एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से कहा था, don't touch them. मसीहों को छोड़ दो, इन्हें हाथ मत लगाओ। Because if they touch them, यदि इनको हाथ लगाओगे, they grow. ये लोग का इतिहास है, ये लोग और बढ़ जाते हैं। Amen. Amen. So many kingdoms have tried to destroy. बहुत से राज्य आए और नाश करने का मसीहों को प्रयास कर चुके। Nero burnt Christians. नीरो ने तो मसीहों को अपने आंगन में जिंदा जलाया था, Threw them to the lions. और किसी को सिंहों के सामने में यूं ही डाल देता था, Tore them apart. और शेर उस जनता के सामने उस विश्वासी को फाड़कर टुकड़े कर देते थे। What happened? क्या हुआ? Rome fell. रोम का साम्राज्य धाराशायी हुआ All over the world, Christianity spread. और पूरे दुनिया में मसीहत कोने कोने में फैल गई। If this work is of man, यदि ये काम और ये धर्म किसी मनुष्य का होता it will come to an end. तो अब तक इसका अंत हो गया होता, But if it is of God, परंतु यदि ये धर्म और ये काम परमेश्वर की ओर से, it will prevail. वो प्रबल ही होगा। Hallelujah. Amen. 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 No persecution has ever put the church into a place of silence. किसी भी प्रकार के सताव ने कलीसिया को कभी भी शांत नहीं कर पाई है। We don't use violence. हम हिंसा का प्रयोग नहीं करते। We have the greatest power. हमारे पास में क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार और सामर्थ है, It is the power of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। We have greatest weapon. हमारे पास में एक बड़ा हथियार है, Love. और वो है प्रेम का हथियार। Hallelujah. Hallelujah. Napoleon said, नेपोलियन उस सम्राट ने कहा, I and Alexander almost conquered the world. मैं और सिकंदर बादशाह हम दोनों दुनिया को लगभग पूरा पूरा कब्जा कर ही डाले थे। Now I am alone. लेकिन आज स्थिति है मेरी, मैं अकेला बैठा हूं, No one is around me. मेरे आसपास कोई भीड़ नहीं है। I needed men to conquer. मुझे इस दुनिया के ऊपर में जीतने के लिए योद्धाओं की जरूरत थी। I needed power. मुझको ताकत और अधिकार की जरूरत थी। But this man Jesus, परंतु जरा देखो, ये आदमी जिसका नाम यीशु है, he has no army. He इसके had no पास- army on this earth. इसके पास इस दुनिया में कोई फौज, कोई सेना, कुछ नहीं, He's conquered the hearts of men. लेकिन इसने दुनिया के, पूरी दुनिया के लोगों का दिल को जीत डाला है। Hallelujah. हालेलुया। Every look and corner, every island, and every part of the world. दुनिया के हर एक कोने कोने में, दुनिया के हर एक क्षेत्र और स्थान में People belong to Jesus. वहां पर यीशु की संतान, प्रभु के लोग पाए जाते हैं, Let your kingdom come. और यही प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए। Our prayer, हमारी प्रार्थना, God bless this nation. परमेश्वर हमारे भारत देश को आशीष दे। Amen. आमीन। It has an ancient history. इस भारत का भी एक बड़ा प्राचीन इतिहास है। Its name is in the Bible. इसका नाम इतना पुराना है कि बाइबल में भी इस देश का नाम है। And the only way this nation can be blessed और एक ही तरीका है जिससे हमारा भारत आशीषित हो is सकता the है, prayer of God's people. और वो है जब प्रभु के लोग आप और मैं इस Amen. देश के लिए प्रार्थना करें। You can bring about a change. आप इस देश में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। Pray for every department. हर एक इस देश के विभागों के लिए दुआ करें। Pray for Rajya Sabha, Lok Sabha, Vidhan Sabha. राज्यसभा के लिए भी, लोकसभा के लिए भी प्रार्थना करें। Pray for collector, commissioners, कलेक्टर्स के लिए, कमिश्नर्स के लिए प्रार्थना करें। police. पुलिस के लिए प्रार्थना करें। Thank God for them. प्रभु का इन लोगों के लिए I do not know about any other book. मैं और कोई दुनिया में ऐसी पवित्र शास्त्र या धर्मशास्त्र किताब को नहीं जानता हूँ, But I know one thing. लेकिन एक बात जानता हूँ, This book says, ये जो किताब है, The बाइबल Bible. कहती है, pray for your rulers. अपने शासकों के लिए, जो तुम पर अधिकार रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। Church will pray. और कलीसिया उस आज्ञा को मानकर प्रार्थना करती है। Revival is on the way. याद रखें, Amen.
बेदारी Amen. की आहट हो रही है। Amen. आमेन। It might come with the wind of persecution. हो सकता है वो सताव के इस बयार के साथ आ जाए। The harder the wind, the higher we go. जितना ज्यादा आंधी तेज, उतना हवा हमें ऊपर उठा देगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Remember, याद रखें, one day I preached a sermon, एक दिन but I मैंने want to preach it, tell you now only. एक दिन मुझे संदेश प्रचार करना था। How many have seen football? आप में से कितने लोग फुटबॉल देखे? Not match, football. All right. गेंद, फुटबॉल। So when you go to the market to buy it, जब आप बाजार एक बॉल खरीदने जाते हैं, it's all folded up, kept in one section. वो पूरा वो चपटा हुआ किसी एक जगह में से सपाट रखे रहता है। And it is out of shape. और उसका आकार असली गेंद का नहीं है। You throw it on the ground, it doesn't bounce. आप उसको वहां उस खंड से निकाल कर जमीन में डालें तो वहीं गिर जाता है, उछलता नहीं है। So is a Christian. एक मसीही भी वैसा ही है। He is made so strong. वो इतना मजबूत बना है The kick of thousands cannot break it. कि हजारों लात उसमें पड़ने के बाद भी वो गेंद जिंदा रहता है। Company made it like that. कंपनी ने उसको ऐसा ही मजबूत और दृढ़ बनाया है। When you fill it with air, जब उसके अंदर हवा भर दिया जाए it takes its shape. तो वो अपने असली आकार में आता है। When you get filled with the Holy Ghost, जब आप पवित्र आत्मा से भर के लबालब हो जाएं, you will take your shape. आप अपने असली आकार को तब लेंगे। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। And when you kick, और जब फिर दुनिया आपको लात मारेगी, the higher, the stronger the kick, the higher you go. वो जितना जोर से मारेगी आप उतने ऊंचे जाओगे। आमेन। Amen. आमेन। A football match cannot happen without the ball. और एक पूरा फुटबॉल मैच तमाम खिलाड़ी आने के बाद भी नहीं हो सकता जब तक वहां गेंद ना हो। Without a Christian, there can be no match. बिना मसीही के वहां रहे कोई मैच हो ही नहीं सकता। Amen. आमेन। And that ball decides who wins and who loses. और इन दोनों टीम में से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो गेंद तय करता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Christian decides मसीही आप और मैं तय करते हैं who will win. कौन जीतेगा। And to get us, और हमें पाने के लिए there is grapple. वहां पर लोगों में होड़ मची है। उस There is गेंद- tackling. लोग उस गेंद को अपने कब्जे में लेने के लिए There is technique. वहां पर टेक्निक अपनाते हैं। But every eye is on the ball. और पूरे दर्शक दीर्घा की नजर केवल उस गेंद पे टिकी है। Don't worry if people kick you. चिंता मत करें जब लोग लात मारते हैं, You are going to decide who wins and who क्योंकि आप loses. ही तो तय करेंगे जीतेगा कौन हारेगा कौन। Hallelujah. आमेन। Shall we bow heads and pray? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं।